ज्यादा दिन हुए नहीं हैं पहलगाम अटैक में, जहां पर इतने सारे टूरिस्ट हैव बीन अटैक्ड एंड शहीद हुए हैं। साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहां पर कि पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट इट इज डूइंग, एंड नॉट ओनली इट impacts us, it impacts Pakistan all the more in terms of their development, in terms of their credibility in the international geopolitics. I hope we find a solution to all of that and we do not go down the hole of a full-blown conflict. हालांकि it's time that India does something deciding ताकि this a problem can be taken care of from its roots itself. हम वो discussion नहीं करेंगे. I'll discuss something else. I was looking up into records of certain events the last 10-15 years. 2000 में छत्तीस सिंहपोरा विलेज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 36 लोगों की हत्या की गई थी। 2000 में 32 लोगों की हत्या हुई थी नुवन बेस कैंप नियर अमरनाथ, और ये भी नियर अनंतनाग है। शेषनाग कैंप 2001 में अनंतनाग के पास में अगेन देयर वाज एन अटैक एंड 13 पीपल डाइड। 2002 में जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे में अटैक किया गया था, जिसमें कि एक एलईडी एक्सप्लोजिव की वजह से 19 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। One of the very bad attacks was in 2003 में, जहां पर 24 लोग were killed near नंदी मार्ग ग्राम in the Pulwama district. And 2005 में again 13 civilians were impacted, including 2 children and CRPF officials, when a bomb was blasted in front of a government school in a crowded market area in Pulwama. 2016 में militants shot down 9 civilians and 8 CRPF personnel in a region near Pampur, not far away from Srinagar. 2017 में again जम्मू श्रीनगर के हाईवे में around Anantnag region there was a commando training center which was attacked, and that also impacted the killing of 5 security personnel. और recent memory में the worst one was the attack in 2019 जहां पर एक CRPF का convoy को अटैक किया गया था by suicide bombing, and it impacted India so badly that we went in for the security retaliation in the form of surgical strikes. बालाकोट में हमने अटैक किया था। 2023 में there was a major standoff between the security personnel of India and again the terrorists who were impacting and hiding in the region of Anantnag. So अगर आप देखेंगे, there has been a story of attacks, story of security concerns in the region of Anantnag, region of Pulwama and Pahalgam. इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब पहलगाम अटैक हुआ था नियर बाइसरान मीडोज वेयर टूरिस्ट वेयर गन डाउन बाय द टेररिस्ट, उसका रीजन क्या था, व्हाई दिस एरिया इज सो वल्नरेबल, एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट मेक्स अनंतनाग पुलवामा पहलगाम रीजन सो फ्रीक्वेंट इन टर्म्स ऑफ अटैक्स बाय द टेररिस्ट। इस रीजन का वल्नरेबिलिटी क्या है, इस रीजन में ऐसा क्या है जो पिछले 20-25 साल में more than 30 major incidents of security breaches हुई हैं, where there have been attacks, army personnel have been attacked, civilians have been attacked, और ये अनंतनाग पुलवामा पहलगाम has been part of a very disturbing history, अभी नहीं, even earlier, since the time कश्मीर का प्रॉब्लम शुरू हुआ है with पाकिस्तान। ये मैप से I hope you get a sense of location कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। I'm talking about the area called अनंतनाग, पुलवामा एंड पहलगाम। ये रीजन की बात, इस रीजन की बात कर रहे हैं। अनंतनाग इज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, और बगल में ये भी डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा, एंड पहलगाम इज अ टूरिस्ट सेंटर, पहलगाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द पिलग्रिम्स रूट, और ये सारा आता है अंडर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, पहलगाम एंड अनंतनाग। टू अप्रिशिएट अनंतनाग का लोकेशन क्या है, लुक एट दिस मैप। Anantnag, Pooch, Srinagar, and Jammu. It's a kind of a triangle that we have. Okay. और इस triangle के पास ही we have Anantnag region. So Srinagar के south east में Anantnag है, और this area is also part of the region of Kashmir Valley. In terms of district, हम बात कर रहे हैं ये region की, ये Anantnag district है. It is not the largest district, but it is a significant district. In fact, Anantnag is the 3rd largest city of Jammu Kashmir after Srinagar and Jammu. हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, और इसके विसिनिटी में you have got शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, इसी के पास में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस एरिया का रिलेटिव लोकेशन
पूंछ से देखें जो कि एलओसी के पास है, इस रीजन का लोकेशन रजौड़ी से देखें और ये भी एलओसी के पास में है. Essentially, this is a part of the area called as Kashmir Valley. So ये जो रीजन है, this is Kashmir Valley. कश्मीर वैली जब हम कहते हैं, we are talking about a river called as River Jhelum. रिवर झेलम कुछ ऐसे निकलती है. It comes down, it more or less flows along the LOC and then enters into Pakistan here. ये रिवर झेलम का जो वैली है, इस वैली को बोलते हैं कश्मीर वैली. इसी झेलम पे काफी न्यूज में यहाँ पर जस्ट नियर द बॉर्डर पीओके में यहाँ पर एक डैम है कॉल्ड एज मंगला डैम. एंड अनंतनाग जो है इस वैली के साउथ में है. सो अगर हम कश्मीर वैली की बात कर रहे हैं, कश्मीर वैली का दो पार्ट है. एक नदर्न पार्ट है, नदर्न कश्मीर वैली, और एक सदर्न कश्मीर वैली. नदर्न कश्मीर वैली में यह प्लेसेस लाइक कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला. साउथ कश्मीर में अनंतनाग है, पुलवामा है, पहलगाम रीजन है. तो अगर इसको आप दोबारा देखते हैं ऑन दिस मैप, नदर्न कश्मीर का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है. दिस एरिया नदर्न कश्मीर, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, ये नदर्न कश्मीर है. सदर्न कश्मीर ये वाला रीजन है, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, ये सदर्न कश्मीर है. सो अनंतनाग रीजन जो है सदर्न कश्मीर के पार्ट का बहुत अहम हिस्सा है. To tell you about a brief story about Anantnag. Anantnag का history goes back to even medieval times. In fact, Anantnag को इस्लामाबाद भी कहते हैं because the old name of Anantnag was Islamabad. It was not named after Islamabad जो पाकिस्तान का कैपिटल से नहीं है. इसका रिलेशनशिप विथ मुगल रूल के टाइम का है. मुगल टाइम्स में एक गवर्नर हुआ करते थे, इस्लाम खान. He was the main governor of Anantnag region. उन्हीं के नाम से अनंतनाग रीजन को रखा गया था नाम एस इस्लामाबाद. ऑफ कोर्स ये काफी डिस्प्यूटेड रहा है एंड इवन नाउ लोकल पॉपुलेशन रिफर टू अनंतनाग एज इस्लामाबाद, बट इट इज नॉट सो मच इन रेफरेंस टू पाकिस्तान या पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, ऐसा नहीं है. ये हिस्टोरिकल रहा है इस्लामाबाद. हालांकि देयर आर मोर एफर्ट्स नाउ टू एस्टैब्लिश अनंतनाग एज अ सेपरेट नेम रादर देन यूज द वर्ड इस्लामाबाद. बाय द वे, ये जो नेम नाग है, मोस्ट ऑफ अस माइट कंफ्यूज द नाग is related to serpent, snakes or cobra. In fact, Hindu religion में नाग सांप का काफी अहमियत है. नाग सांप is considered one of the important spiritual aspects of Lord Shiva and his worship also. But अनंतनाग का जो नाग है वो इससे related नहीं है. नाग in Kashmiri refers to waterfalls and springs. So अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, ये waterfalls हैं, ये नेचुरल स्प्रिंग्स हैं जहां से कि बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं. सो रिवर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर वेरीनाग एंड शेषनाग लेक. सो अनंतनाग जो नाग है, नेम है, इट्स लाइक वन ऑफ द लास्ट रीजन्स वेयर वी हैव दिस काइंड ऑफ वाटरफॉल्स, द सोर्स ऑफ रिवर झेलम. तो ये हो गया अनंतनाग का ब्रीफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. नाउ अनंतनाग को आप देखें इन द रेफरेंस टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन. जिस रीजन की बात कर रहे हैं वो रीजन ये वाला एरिया है. दिस इज श्रीनगर एरिया. यहाँ पर श्रीनगर के साउथ ईस्ट में यहाँ कहीं पर यू हैव अनंतनाग. सो अनंतनाग एसेंशियली इज दिस रीजन समवेयर हियर अबाउट साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर. एंड लुक एट दिस प्लेस कॉल्ड एज बनिहाल. ये है बनिहाल पास. बनिहाल पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास इन द पीर पंजल रेंज. सो पीर पंजल रेंज यहाँ पर है. अनंतनाग के नॉर्थ में यहां पर ग्रेटर हिमालयाज हैं. Okay. So ये जो रीजन है, दिस एरिया इज अ माउंटेनस टेरेन. यहाँ पर फॉरेस्ट है एंड दिस एरिया हैज एलिवेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर्स एंड अबव. इनफैक्ट ये वैली इटसेल्फ इज एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर और आइदर साइड में देयर इज डिफिकल्ट टोपोग्राफी, डेंस फॉरेस्ट हैं ऑफ पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालयाज. सो जो अनंतनाग का लोकेशन है, Anantnag ka location is in the vicinity of the mountains. It is at the southern part of the valley and Anantnag is also very close to the LOC. अगर ये LOC something like this है यहाँ पर, तो अनंतनाग का लोकेशन LOC से काफी पास में है. दोबारा आप ये मैप देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस इलाके की. ये अनंतनाग लोकेशन है, पुलवामा, पहलगाम, हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं. और ये लोकेशन you should see in reference to this highway. ये एक हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है. This highway was earlier called as 1A, National Highway 1A. अब ये कहलाता
है नेशनल हाईवे 44 एंड नेशनल हाईवे 44 इज द मेजर हाईवेज कनेक्टिंग इंडिया विद श्रीनगर। और इस 44 हाईवे का जो एंट्री पॉइंट है वो अनंतनाग है इनटू द कश्मीर वैली। सो अगर ये कश्मीर वैली है और आप इस हाईवे से आ रहे हैं, ये हाईवे का एंट्री पॉइंट इनटू कश्मीर वैली इज अनंतनाग। द हाईवे passes through Panihal Pass across the Pir Panjal Range. This is the Pir Panjal Range here, और इसके नॉर्थ में यहां पर इज द ग्रेटर हिमालयस यहां पर। सो ग्रेट हिमालयस नॉर्थ में, पीर पंजल साउथ में, इन दोनों के बीच में यू हैव द अनंतनाग एज एन इंपॉर्टेंट एंट्री इनटू द कश्मीर वैली। मैं चाहूंगा कि आप इस इलाके को भी ध्यान दें। दिस एरिया जहां पर पहलगाम लिखा हुआ है, पहलगाम और अनंतनाग बहुत करीब है। ओके, अनंतनाग, पुलवामा एंड पहलगाम ये बहुत करीब इलाका है। और पहलगाम के पास ही वी हैड दिस अनफॉर्चुनेट अटैक बाइसरन मीडोज में, where recently the tourists were gunned down by the terrorists. अब पहलगाम का लोकेशन आप देखें vis-a-vis this region here, okay, and the region here. ये आड़ू वैली एक टाइप का मीडोज है। These are meadows, these are pastures, okay, and along this is your Kashmir Valley. ये बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी, this is towards अमरनाथ। नाउ पहलगाम का लोकेशन ऐसा लोकेशन है जहां से कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए जंक्शन वेयर इट बिकम्स स्ट्रेटेजिक फॉर गोइंग टूवर्ड्स अमरनाथ एंड स्ट्रेटेजिक आल्सो फॉर एंटरिंग इनटू द कश्मीर वैली। और इस इलाके में अटैक हुआ था। बाय द वे लेट मी टेल यू, ये जो मीडोज की बात कर रहे हैं, मीडोज एसेंशियली आर ग्रासलैंड्स। ये बाइसरन इज अ मीडो, बेताब वैली इज अ मीडो, आड़ू वैली इज अ मीडो। आप और नॉर्थ जाएंगे, यहां पर सोनमर्ग है। सोनमर्ग is also one type of meadow. These meadows are alpine meadows. Alpine meadows, ये mountains के height पे, at heights more than 3,000 meters, at heights more than 3,500 meters पे, because of relative aridity यहाँ पे grasslands होते हैं और ये काफी खुला हुआ एरिया होता है। ये जो खुला एरिया है, this itself becomes one of the difficult terrains for surveillance and for security management, because इस एरिया में पेट्रोलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दीज मीडोज आर यूज्ड एज ट्रांजिट पॉइंट्स फॉर द इन्फिल्ट्रेटर्स टू एंटर इनटू दीज रीजन्स। So the vulnerability of Anantnag, Pulwama, Pahalgam is partly because of the terrain and because of the forest. This region lies between two large mountains and the areas is heavily forested. In fact, Aru region is also one type of a wildlife sanctuary, part of a larger national park also. इसके अंदर में छुपना बड़ा आसान हो जाता है। So एक तरफ तो अनंतनाग is at the entry point of the Kashmir Valley. It is very strategic because सारे travelers, pilgrims pass through this Anantnag Pahalgam region, और ये mountainous regions में यहाँ पर छुपना, अटैक करना आसान हो जाता है। Anantnag always has been politically a very very high strung region. अनंतनाग में ही पीडीपी का इलेक्टोरल बेस है। पीडीपी इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कश्मीर, जिसके फाउंडर रह चुके हैं सईद मुफ्ती एंड हिज डॉटर महबूबा मुफ्ती। इनका जो मेन इलेक्टोरल बेस है, द पॉलिटिकल क्लाउड इनको जो होता है, ये अनंतनाग से ही आता है। सो अनंतनाग ऑलरेडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर ऑफ कश्मीर वैली, एंड अनंतनाग में देयर इज अ फेयर गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। तो बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड अनंतनाग में रूरल अर्बन भी अच्छा खासा मिक्स है, बिकॉज ऑफ रूरल अर्बन डिवाइड, बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम्स का जो डाइवर्सिटी है, दिस एरिया में एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इशू, एनी काइंड ऑफ अटैक or concern security has a very high impact on the politics of the entire region. देखिए, जब टेररिस्ट अटैक करते हैं, द अटैक इज नॉट सो मच टू डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, but the attack is more to shake up the confidence of people in the administration. अटैक का एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट, ताकि लोग डरे लोगों से, इसीलिए बोलते टेररिस्ट अटैक। सो ऑलरेडी पॉलिटिकली इकोनॉमिक काफी वॉलेटाइल रीजन है अनंतनाग। इनफैक्ट जब 1990s में एंटी पंडित्स का जो पूरा एक दौर रहा था, वेयर लॉट ऑफ communal violence was reported, Anantnag was one area जहां पर conflicts बहुत ज्यादा थी।
तो हिस्टोरिकली इस एरिया में there's always a high strung political and economic situation also, which has been one of the levers for the infiltrators and terrorists to exploit and destabilize the region. So एक तरफ टेरेन का रीजन है, माउंटेन्स वगैरह है, फॉरेस्ट है, एक तरफ आपके पास पॉलिटिकल रियलिटी है, और एक ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. नाउ इस लोकेशन के ना तीन एस्पेक्ट्स हैं. वन इज अनंतनाग इज अलोंग द अमरनाथ रूट. अनंतनाग is along the Jammu Srinagar highway, and Anantnag region is also very near LOC. ये जो तीन एस्पेक्ट हैं make Anantnag, Pulwama, Pahalgam very convenient locations for any kind of these kind of terrorist attacks. इस डायग्राम में वही दिखाना चाह रहे हैं कि पहलगाम है और पहलगाम से one route goes towards Amarnath. So any attack in this region can have a tremendous impact. And इसी से ही इधर भी है. You have got the Adu Valley and Srinagar. So this area is in term location काफी vulnerable है. This map shows the Pahalgam से लेकर अमरनाथ वाला जो रूट है, एंड शेषनाग में अटैक हो चुके हैं, चंदनवाड़ी में अटैक हो चुके हैं. We have had security concerns पहलगाम में ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल में काफी सारे. So ये जो रूट है, this makes the region so vulnerable. Now, सबसे important reason for Anantnag and Pahalgam, Pulwama region to have conflicts is its location vis-a-vis LOC. आप इस मैप को बड़े ध्यान से देखें. इस मैप में एक मिस्टेक हो गया है, where we have shown POK here. Actually, POK ये वाला पोर्शन है. This portion is POK. So this labeling should have been on this side here, and of course POK we have here. This blue dot में जो आप देख रहे हैं, this area is the Kashmir Valley. ये कश्मीर वैली है, and this Kashmir is the POK कश्मीर. यहाँ पर इस मैप में आप जम्मू का लोकेशन देखें, where we have Jammu, and we have Anantnag somewhere here, and इसके साथ में ही we have POK में कोटली रीजन है, POK में भिंबार रीजन है, रावाला कोट रीजन है, मुजफ्फराबाद रीजन है. So when there are infiltrations, जो टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान के, इनके 2-3 रूट होते हैं. एक तो ये मुजफ्फराबाद से यहाँ पर एंट्री होती है टुवर्ड्स नॉर्थ कश्मीर, एंड यू हैव कुपवाड़ा हियर, यू हैव गॉट बारामूला हियर, यहीं पर बांदीपुरा है, गंदरबल है. तो ये एक एंट्री पॉइंट. इनफैक्ट जब इंडिया ने बालाकोट को अटैक किया था सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट यहीं कहीं पर है. Okay, so this is an important entry point for the terrorist infiltrators. Second entry point है कोटली. कोटली is also very important training center terrorist का. कोटली से एंट्री थ्रू पूंछ होती है इनटू कश्मीर वैली. कोटली से राजौरी की तरफ से एंट्री होती है इनटू कश्मीर वैली. इसके अलावा ये जो भिंबार लिखा हुआ है, भिंबार न्यू मोर एरिया, यहां से भी एंट्री होती है थ्रू राजौरी रीजन. सो अगर आप एंट्री पॉइंट्स देखें, एक एंट्री पॉइंट कठुआ और संभा से भी है. यहां से जम्मू होते हुए दे अगेन एंटर इनटू द कश्मीर वैली. सो ये सारे एंट्री पॉइंट, जो नॉर्थ कश्मीर है, ये नॉर्थ कश्मीर की एंट्री यहां से होता है. ओके, दैट्स हाउ कुपवाड़ा, बारामूला ऑलवेज हैज सम प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी. और जो साउथ कश्मीर की एंट्री है वो ये वाला है. दे ऑल अल्टीमेटली पास थ्रू रीजन्स ऑफ अनंतनाग, रीजन्स ऑफ पुलवामा एंड पहलगाम. So ये जो रीजन है, therefore it becomes a very strategically vulnerable region because ये entry point into Kashmir from the south बन जाता है. In this map I'm showing you where is Muzaffarabad, और मुजफ्फराबाद के further northeast में ही you have got Balakot. Okay, और यहाँ पर हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक. So the entry point of infiltrators पाकिस्तान से जो है, ये बालाकोट से आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और यहां पर कोटली दिखाया था, कोटली, पूंछ, पुलवामा, यहां पर भिंबार दिखाया था, यहां से एंट्री होती है, प्लस थ्रू राजौरी भी एंट्री होती है, एंड सम एंट्री थ्रू कठुआ, सांबा एंड जम्मू से भी एंट्री होती है. ये सारे एरिया का ये जो रीजन है, दिस एरिया इज अनंतनाग, एंड बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स सो वल्नरेबल टू अटैक्स. ये मैंने निकाला वन ऑफ द न्यूज चैनल के वेबसाइट से, a news channel called as NewsX. इसमें they have shown what are the important centers of Pakistan terrorism training camps.
ये भीमबार में के HUM LET का ट्रेनिंग सेंटर्स है। वैसे कोटली बताया था मैंने, यहाँ पर भी LET, अलबदर, JEM इनका ट्रेनिंग सेंटर्स है। रावलकोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर। इट ट्रेन्स अगेन टेररिस्ट। रावलकोट, हैदर कैंप यहाँ पर है, आमीना कैंप है, चिनार कैंप है, बेला नूर शाह कैंप नियर मुजफ्फराबाद है, अब्दुल्ला बिन मसूद कैंप है, और बालाकोट में हमने यहाँ पर अटैक किया था 2019 में। और इसके लोकेशन में यू कैन सी दिस एरियाज एंड हाउ इन्फिल्ट्रेशन हैपेंस, एंड इट रीचेस द रीजन ऑफ अनंतनाग, फ्रॉम कोटली टुवर्ड्स अनंतनाग into Kashmir Valley, from Bhimbar, Rajouri, again Anantnag, Kashmir Valley, and through Jammu also ultimately into the Kashmir Valley. So Anantnag kind of becomes an important center that received the infiltrators, terrorists from across the LOC borders. So the security concerns जो अनंतनाग पहलगाम में है, पिछले 20-25 साल में more than 30-35 major breaches हुई हैं। एक रीजन है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। इट इज एट अ वेरी कन्वीनियंट पॉइंट फॉर द इन्फिल्ट्रेटर्स टू अटैक एंड एंटर। तो ये सब सुनते हुए और बताते हुए एक हैरत बात ये होती है कि जब when we know that Anantnag region is so vulnerable to infiltrations, why are we not able to strengthen our security here? Why don't we strengthen the intelligence gathered in this region? हालांकि रिपोर्ट्स रही हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू ऑलवेज एंटिसिपेट व्हाट हैपेंस, बट आई स्टिल थिंक द सिक्योरिटी कैन बी far more stringent to ensure that this area is not exploited. Keep watching us for these kind of videos where I can explain whatever events take place, good, bad, unfortunate, in the context of geographical factors, in the context of terrain, in the context of location, and the strategic positions that make a region having its strength or weaknesses for these kind of geopolitical developments. Keep watching me, Edukemi, for geography stories and geography explanations to why some kind of events happen and how they impact the history of a particular place.